हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. Plaintiff appellant is in the regular second appeal against the concurrent findings of fact arrived at by both the courts below, dismissing suit for declaration with consequential relief of permanent injunction. Full stop para. Plaintiff claims that the property was joint Hindu family ancestral Copper Scenery property and therefore his predecessor late Shri Chet Singh was not competent to bequeath the property by executing a testament. Full stop para. Defendants who are also grandsons of late Shri Chet Singh defended the suit and pleaded that late Shri Chet Singh had executed two registered testaments, first dated 10/6/1996 and second dated 16/10/1996. Full stop. It was further pleaded that the plaintiffs and defendant number 3 to 9 had separated and they did not even participate in the last rites of late Shri Chet Singh. Full stop para. Both the courts on appreciation of the evidence have found that the testament dated 16/10/1996 has been proved by examining Angrez Singh, the attesting witness as DW3 and scribe Ashok Garg as DW1 in the court. Full stop. The courts have also found that as per the testament, some property has also been bequeathed in favor of the plaintiffs. Full stop para. The courts further examined and found that the property is not proved to be joint Hindu family ancestral Copper Scenery property, as no excerpt of the revenue record was produced and no revenue official was examined to connect the old Khasra members with the new Khasra numbers as records of consolidation. Full stop. Khatoni पैमाइश, खतौनी इस्तेमाल and Naksha Haq Darwar were just tendered in evidence. Full stop. Para. This court has heard learned counsel for the parties at length and with their able assistance gone through the judgments passed by the courts below and the record. Full stop. Para. Learned counsel appearing for the appellant has submitted that although the testament dated 10/6/1996 is not proved on file, however, it recites that late Shri Chet Singh, the executant, had equal love and affection for all of his sons. Full stop. He submitted that after a period of 4 months, late Shri Chet Singh has got recited in the subsequent testament dated 16/10/1996 that the plaintiffs abused him and treated him badly. Full stop. He submits that the subsequent testament is surrounded by suspicious circumstances, as within 4 months the old man cannot be expected to change his stand. Full stop. He further submitted that late Shri Chet Singh
was old and suffering from illness as admitted by DW3, Angrez Singh, as also recited in the testament dated 16/10/1996 full stop para. This court has considered the submissions and analyzed the evidence full stop para. Late Shri Chet Singh, after 4 months of the previous testament, had executed a new testament which is the last testament full stop. It is the last testament which has to operate, and previous testaments, if any, would stand superseded full stop. Late Shri Chet Singh remained alive after execution and registration of the testament dated 16/10/1996 for a period of 3 years full stop. The last wish of late Shri Chet Singh cannot be ignored full stop over. तो फ्रेंड्स ये लगभग 90 की स्पीड में हो गया है. कुछ नाम इसमें आए थे तो वहाँ पे हम स्लो हो गए थे, तो थोड़ा स्पीड मेंटेन करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये वहाँ के चंडीगढ़ के शायद ज़मीन से जुड़े हुए कुछ टर्म्स थे. पैमाइश, इस्तेमाल, खतौनी, है ना. खतौनी तो खैर यहाँ पे भी होता है, लेकिन ये नक्शा हक दरबार, इसको ज़रा देख लीजिएगा अपने यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग के यहाँ, मतलब जो पंजाब से डिक्टेशंस ले रहे होंगे. ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ देख लिया जाए क्या है, कुछ नाम वगैरह. चेत सिंह तो पूरा बनेगा. चे को या तो हाफ कर दीजिए, समझ जाए, समझ नहीं पाएंगे वैसे. ऑन द लाइन चे बनाइए, टी बनाइए, पेन की वॉवल आफ्टर में चे के. ठीक है, चेत सिंह. और कुछ अंग्रेज सिंह, अंग्रेज बनेगा एन ऑन द अबव द लाइन एन, फिर गे आर, फिर जे. ठीक है, अंग्रेज अबव द लाइन का स्ट्रोक है. अशोक गर्ग के लिए, अशोक तो बनाते ही हैं नॉर्मल एस एच, डाउनवर्ड एस एच के, और गर्ग के लिए गे की डबलिंग कैरेक्टर बना दीजिए गर्ग के लिए. ठीक है, और मतलब कैरेक्टर का ग्रामलॉग, सॉरी ग्रामलॉग नहीं है वो, जो भी है, एग्जामिन फैमिली. खसरा तो के सर्किल आर अपवर्ड खसरा, उसी में नंबर का ग्रामलॉग जोड़ दीजिए, खसरा नंबर. अच्छा, एक जगह खसरा नंबर्स लिखा है, हमने मेंबर्स पढ़ दिया है, मेंबर्स. ठीक है, वो नंबर्स है. और खतौनी पूरा बनेगा के टी एन, एन का स्ट्रोक, ई की वॉवल. पैमाइश के लिए क्या करिए कि या तो पी बनाइए अबव द लाइन पी एम और उसमें सर्किल कर दीजिए. ठीक है, और एम के आफ्टर में आई का डिफ्थोंग लगा दीजिए. ठीक है, और पैमाइश हो गया. या फिर एस एच भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाउनवर्ड एस एच बना दीजिए. ठीक, खतौनी के लिए हो गया. इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस्तेमाल एस ऑन द लाइन एस को हाफ कर दीजिए, उसमें टी निकल आएगा, एस हाफ एम, उसके बाद अपवर्ड एल, इस्तेमाल. ठीक है, इस्तेमाल हो गया. कहाँ गया इस्तेमाल. और नक्शा के लिए नक्शा पूरा बनेगा एन के एस एच डाउनवर्ड. ठीक है, हक दरबार, हक दरबार, ये भी थोड़ी लंबी आउटलाइन बन जाएगी. हकदर से हकदरवार अगर पढ़ लें तो ठीक है. एच बनाइए अपवर्ड, के बनाइए और डी आर कर दीजिए बस. हकदर से हकदरवार, क्योंकि अजीब वर्ड है ये, अगर आप कुछ भी इसका बना लेंगे इनिशियल्स तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, हक भी अगर बना देंगे तो भी आप अगर प्रैक्टिस में है तो आप समझ जाएंगे ये हक दरबार है. ठीक है, केवल अपवर्ड एच के या डाउनवर्ड एच के. ठीक, हक, हकदर, या फिर एच बनाइए और के की डबलिंग कर दीजिए, हकदर हो जाएगा ना. उसी में डब्लू की डबलिंग कर दीजिए, वे की डबलिंग कर दीजिए, वार उसमें निकल आएगा, हकदर वार. ठीक, और छेद सिंह हो गया ये सब. अब तो कुछ बचा नहीं, अंग्रेज सिंह वगैरह. ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया है. अब कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएं. हालांकि हमने वो क्या कहते हैं, आपने चेक किया होगा सीपीटी, कोशिश की थी कि आपको कुछ समझ में आए. एक तो नॉर्मल हमने एक टेबल सॉल्व की और उसके बाद 2 नए फार्मूला बताए थे. कुछ एक आध फार्मूले और बच गए थे, वो हम बता देंगे किसी नई वीडियो में. ठीक है, तो कमेंट्स को हमने सिर्फ ऐसे बता दिया था.
लेकिन आपको हम सॉल्व आउट कर देते हैं जो भी चीज़ें हैं। सर जे सर जी मान लीजिए कि मुझे स्कोर शीट डेली देखिए एक्सेल शीट दे पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए क्योंकि थोड़ी मेहनत लग जाती है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको दे। वेलकम वेलकम जिसने थैंक यू कहा है। और हाँ, इन्फॉर्मेशन सब टोटल और कस्टम आरएस की, कस्टम आरएस में आप कुछ भी कर सकते हो, ग्राम हो गया, या मतलब उसको हमने ये समझाने की कोशिश की है कि दो सेल्स में अगर कोई नंबर है तो वो इजीली उसमें सॉल्यूशन या कोई भी फार्मूला लग जाता है, लेकिन अगर किसी भी एक सेल में कोई लेटर दिया है, अल्फ़ाबेट दिया है ना, तो फिर वो नहीं देता है। तो उस केस में आपको फॉर्मेटिंग सेल का यूज़ करके उसमें आपको लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। और सब टोटल एग्ज़ाम में फार्मूला जब आएगा या पूछा जाएगा तभी आपको लगाना है, अपने से नहीं लगा देना है कि पता चला सब टोटल लगा दीजिए अपने से, है ना। और लीगल में देखिए, हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो लीगल में क्या आया था ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ लीगल मैटर आया था। थैंक यू सो मच। और 7-8 घंटे में देखिए, 7-8 घंटे शॉर्ट हैंड में लगता ज़रूर है। कोई एक है कमेंट आया है, काम करते हुए पढ़ना मुश्किल है दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, तो हाँ ये तो बात है कि शॉर्ट हैंड ज़्यादा टाइम लेती है, तो किसी भी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो भी शॉर्ट हैंड लोग करते हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि हमको सिर्फ शॉर्ट हैंड में ही जॉब लेनी है, तब तो उनको 1-1.5 साल 2 साल में मिल जाएगी जॉब। लेकिन अगर भटके, देखिए एक मुहावरा भी है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। किसी एक चीज़ को साधिए तो सब कुछ मिल जाएगा, और अगर सब कुछ को साधिएगा तो मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप फिर जिसमें दिमाग का 100% आपको किसी एक चीज़ में देना होगा, तो वो आपने 10 जगह बांट दी, तो कहाँ से किसी चीज़ में सक्सेस मिलेगी, है ना। तो कोई भी चीज़ करिए उसको पूरे दिल से करिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं किसी भी फील्ड में, उन सब को आप उठा के पढ़िए, देखिए तो वो आपको, उनमें 90% लोगों ने सिर्फ यही चीज़ सोची है कि हमें करना था, हमने उसके लिए जी जान से मेहनत कर डाली, सब कुछ दे दिया। अब हमको आईएएस भी बनना है, हमको आईपीएस भी बनना है, हमको लेखपाल भी बनना है, हमको पटवारी भी बनना है, हमको स्टेनो भी बनना है, पीएस भी बनना है, तो कैसे काम होगा, है ना। वो तो कुछ कुछ एक सोच के चलिए कि हमको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही जाइए करने के लिए, एमबीबीएस है पढ़िए। अब टेक्निकल में आ जाइएगा, इंजीनियरिंग बनिए, इंजीनियरिंग करिएगा तो बायो और उसमें दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी करिए उसको एकदम तल्लीनता के साथ करिए। हाँ, शॉर्ट हैंड के साथ रिटेन को टच में रहिए। देखिए कुछ भी कर लीजिए, 6 घंटा शॉर्ट हैंड और उसके बाद का टाइम रिटेन को देना ही पड़ेगा। खुद का गड्ढा, खुद का कुआं तो आदमी को खोदना ही पड़ता है अगर पानी पीना है तो। हर किसी को अपने जीवन में, अपने पूरे लाइफ स्पैन में खुद के लिए एक मेहनत तो करनी होती है, कोई उसके लिए वो चीज़ नहीं कर सकता। तो खुद से गड्ढा खोदिए, करना ही पड़ेगा, अलग से मेहनत चाहे जैसी लगे, करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, ठीक है। तो और रही बात जो काम करते हैं उन लोगों के लिए, तो उन लोगों के लिए हाँ हम समझ सकते हैं कि मेहनत पड़ती है, क्योंकि काम करते हुए शॉर्ट हैंड ही करना बहुत मुश्किल है, रिटर्न कर पाना कैसे है। तो भाई अपना एक फिक्स कर लीजिए कि आपको, जितने भी लोग सक्सेसफुल मतलब जो भी एडहॉक पे हैं या कहीं पे भी हैं, वो एक टारगेट बना लें कि हमको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो उस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करो या अपने से ऊंची पोस्ट के लिए तैयारी करो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और डायरेक्ट शॉर्ट हैंड के भी कई एग्ज़ाम्स हैं, मुंबई पीएस हो गया, ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी एकदम नॉमिनल रिटर्न आता है, ठीक है, एमपी हाई कोर्ट में भी नॉमिनल रिटर्न आता है, राजस्थान हाई कोर्ट तो डायरेक्ट शॉर्ट हैंड लेता है, ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा भी डायरेक्ट शॉर्ट हैंड लेता है, ठीक है। 5 हमने आपको उंगलियों पे गिना दिए, ठीक। और पटना हाई कोर्ट भी एकदम कुछ बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आता, बहुत कम रिटर्न आता है, वो भी पीएस की पोस्ट है और 54,000 60,000 सैलरी है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बराबर। और चेन्नई हाई कोर्ट में रिटर्न आता है, ठीक है, लेकिन चेन्नई जैसी सैलरी मुंबई पीएस की भी है। तो आप कुछ अपने से ऊपर का लेवल देख लो, 6-7 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट शॉर्ट हैंड के बेस पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, और रिटर्न भी आप करो। तो देखिए किसी भी चीज़ की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, ये सिर्फ आपकी मेहनत ही है जो आपकी गारंटी लेगी, ठीक है। तो आप परेशान मत हो कि हमको वो चाहिए ही चाहिए, आप अपनी तैयारी करो जितनी हो सकती है, देना ना देना तो भगवान के ऊपर है।
आप नहीं कि आप ज़िद में कुछ नहीं ले सकते ना, ज़िद करिए लेकिन पॉजिटिव सेंस में करिए, तो वो ज़िद आपको क्या फल दे देगी आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर सिर्फ हम ये मान के चलें कि यही हमको देना है, यही हमको लेना है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देगा और जो आने वाले एग्जाम्स हैं, आगे आने वाली तैयारी है, उसको भी करवाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक्सेल ही आएगा। हाँ, 95% एक्सेल आएगा सीपीटी में, क्योंकि वर्ड देंगे। वर्ड तो हम अपने से आपसे कह रहे हैं तैयार करके जाओ, लेकिन एक्सेल के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि हमेशा वही आया है। और जिनको अच्छा लगा उनको बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, स्टेनो की वैकेंसी बहुत कम आती है, आती तो बहुत कम है लेकिन ज़बरदस्त आती है। और स्टेनो से ज़्यादा अच्छी सक्सेस हमारे हिसाब से किसी एग्ज़ाम में नहीं मिलती, इसलिए क्योंकि स्टेनो एकदम फिक्स्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, रिटर्न में तो बीसों लाख लोग बैठते हैं। ठीक है, न जाने कितने कितने योद्धा और वीर पड़े हुए हैं जिनसे आपको लड़ना है, मतलब सिविल एग्ज़ाम्स में या फिर जिसमें सिर्फ रिटर्न के बेस पे सिलेक्शन होता है। लेकिन शॉर्ट हैंड तो बंदा जो लिख लेता है ना, उसी का सिलेक्शन होता है, तो इसकी गारंटी 100% है। मतलब कोई भी शॉर्ट हैंड का बंदा अगर खाली बैठा हो तो हमको लिख के बता दीजिएगा, जो कहिएगा हारेंगे। ठीक है ना, कोई भी शॉर्ट हैंड सीखा हुआ बंदा बिना नौकरी के आज की डेट में बैठा नहीं है, इतना जान लीजिए, और न कभी बैठेगा। ठीक, तो हेल्पफुल है, बहुत अच्छा लगा, हेल्पफुल है। ऐसे ही आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगे। पीडीएफ देखिए हमने बाद में डाली थी कल सीपीटी की, इसीलिए उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और क्वेश्चंस कैसे पूछे होंगे, मतलब किस लेवल तक? देखिए, लेवल का तो 10 मिनट में रॉकेट साइंस नहीं पूछने वाला है वो पंजाब हरियाणा। ठीक है, आएंगे। अब देखिए एक्सेल में क्या होता है ना कि लाखों फार्मूले हैं, मतलब लाखों नहीं होंगे तो हजारों फार्मूले होंगे, कहाँ तक सीखेगा कोई फार्मूला? कोई टेक्निकल बंदा तो है नहीं, हम लोग क्या हैं, स्टेनो है। तो वो लोग भी एग्ज़ाम इतने लेवल का नहीं लेंगे, वो मॉडरेट लेवल का लेंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ टफ क्वेश्चंस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आप इतनी जानकारी लेके चलो, जितनी मिल सकती कम से कम उतनी ले लो। ठीक है, तो कम से कम 2 नंबर में से आपको आधा या 1 नंबर तो मिलेगा, इतना करके जाओगे, इतना आप कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सारी नॉलेज ले पाना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी 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 नॉलेज पूरी चीज़ की लेना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसीलिए हमने वो सब टोटल और ये सब कुछ रैंक के फॉर्मूले हैं, कुछ ये सब हैं, ये सब हम इसीलिए कुछ बीच बीच में बता देते हैं ताकि आपको नॉलेज रहे। 2 नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 2 नंबर मिल जाए, लेकिन 2 नंबर में से भी 1 नंबर मिल जाए, इसकी भी कोशिश करनी है ना। तो चलिए, सैलरी टेबल पे बनाना सिखा देंगे, एक बार हम उसकी भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो करिए, उनकी भी, क्योंकि हम अकेले तो पूरी तैयारी करवा नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम की कमी है। आप लोग और भी वीडियोस को फॉलो करिए, उनके क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, और हम भी उनमें से कुछ चीज़ें लेके अपने हिसाब से ये बता दिया करेंगे। लेकिन आप और चीज़ों को भी देखिए, वहाँ से भी क्वेश्चंस कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, 10 मिनट में इतनी बड़ी स्प्रेडशीट नहीं आएगी, ये हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि करिए, लेकिन आराम से करिए और बिना फ्रस्ट्रेशन के करिए, क्योंकि पूरा खेल 10 मिनट का है, माइंड फ्री होकर आपको करना है। हल्की सी फ्रस्ट्रेशन आई तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। सारे कमेंट्स हमने कोशिश ये की है कि आपके डाउट्स को क्लियर करें, नहीं तो बाकी हम कमेंट करके ही बता देंगे। ठीक, कुछ जो होंगे वो हम कल बता देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिक्टेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चलते हैं फिर।